Hi friends, how are you all? Hope you all are good. This is Yashka here with our channel that is Mom's Corner, where we moms discuss about each other feelings and each other experiences. As we all know, pregnancy is a very beautiful period. It is a magical and transformative period, right? Yesterday we have discussed about the eatables and non-eatables during pregnancy. But today we are going to discuss how we can make our pregnancy period as a memorable and beautiful and along with that enjoyable. That we will discuss today. But before that, I would like to request you to like and subscribe my channel. If already liked and subscribed, thank you so much. If not, please do the same. And please share my videos to the whoever who are in need of this, whoever pregnant around you, whoever your neighbor, friends, colleagues, or anyone like in families, you can share with them so that at least this video can be bit informative for them. Not entirely, but they can take some tips from my video. Thank you. So let's start how we can make a pregnancy as enjoyable and memorable. The first and foremost is prioritize yourself. Okay, prioritize your self-care, right? First of all, rest and sleep, which is very much necessity in pregnancy. Okay, to listen to your musical, whatever things which you like to listen and get a rest. Okay, rest is pamper yourself. How you will pamper yourself? By taking massages from the whatever the essential massages that you can take. You can have a warm bath and pamper yourself. Next is hydrate and eat well, which we have already discussed yesterday. But still, again I'll repeat you. If somebody had missed my yesterday's video, then they can able to understand it again. Hydration is very important. Body should be hydrated. You need to drink minimum 3 to 4 liters of water, including juices, then whatever juices you like, coconut water and some herbal teas, including all this stuff. You have to drink 3 to 4 liters overall. Okay, after that, skincare routines. You can take a skincare. It is very necessity because after delivery, pregnancy scratches and all those stuff are coming up. And for that specific care, I'll come up with the new video, one more video wherein I'll entirely discuss along with you about the skincare things. Okay, sorry, मैंने कंटिन्यू इंग्लिश में ही कर दिया. मैं हिंदी में भी आपको एक बार बता देती हूँ, अगर जो मेरे फ्रेंड्स हिंदी वाले भी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए. सब प्रेगनेंसी हमें पता है बहुत प्यारा टाइम होता है जहाँ पे हमें अपनी खुद की केयर लेनी बहुत ज़रूरी होती है. तो इस टाइम को, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जहाँ पे अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, तकलीफ भी होती है, सब होता है. तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए कि इस टाइम को हम कैसे यादगार बनाएं, कैसे एंजॉयबल बनाएं. ओके, सबसे पहले अपने को अपने आप का केयर लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आ जाता है सबसे पहला रेस्ट एंड स्लीप, जहाँ पे आपको नींद की और रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अपने हेल्थ के लिए और अपने बेबी के लिए. नेक्स्ट इज पैम्पर योरसेल्फ. अपने आप को पैम्पर करिए. ओके, अपने आप को पैम्परिंग करना मतलब क्या करना? अपने को जो करके मिल सकता है दूसरे से. नॉर्मली कोई हमें पूछता नहीं है और आफ्टर बेबी ऑल्सो वी डोंट गेट टाइम. बट प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हर किसी की मर्जियाँ फुलफिल हो जाती है. ओके, जहाँ पे हम बोले अरे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दुख रहा है, ये हो रहा है, तो इमीडिएटली रिएक्शन मिल जाते हैं एंड सपोर्ट मिल जाता है. तो उस तरह से हमें पैम्पर करके लेना है. स्पेसिफिकली मसाजेस लेने हैं, वार्म बाथ लेना है, वो सारे स्पेसिफिकली हमें पैम्परिंग के केयर्स लेने हैं. हाइड्रेट एंड ईट वेल, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगी कि अगर कल का वीडियो मेरा किसी ने नहीं देखा है तो थोड़ा सा पता चले. हाइड्रेट होने के लिए हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना है. पानी मतलब सिर्फ पानी ही नहीं पीना है, उसके साथ साथ आपको कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस एंड हर्बल टीज, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है. उसके बाद स्किन केयर रूटीन.
स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी रैशेस आ जाते हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, तो उसीलिए स्किन केयर भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टमक मार्क जो स्ट्रेच मार्क आते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके लिए हमें स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर के ऊपर चाहो तो मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊँगी, तो अगर आप किसी को इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप कमेंट करिएगा प्लीज़। नेक्स्ट इज स्टे एक्टिव। बहुत ज़रूरी है आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना। तो एक्टिव रहने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्टिव रहने के लिए पेरेंटल योगा आता है। तो स्पेसिफिकली पेरेंटल योगा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही करने वाला योगा होता है, जहाँ पे कुछ ही आसनास होते हैं जो हमें करने हैं। ऐसा नहीं कि हर एक पार्ट टेढ़ा मोड़ा करके हमें योगा करना है, नो। आप उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस भी मिल जाते हैं, बुक्स भी मिल जाते हैं, एडवाइजेस भी मिल जाते हैं। अगर आप मुझे कहो तो मैं कुछ वीडियोस या फिर कुछ आसनास लोड कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप बता दो तो आपके हिसाब से मैं अपलोड कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगी। नेक्स्ट इज़ वॉकिंग। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। आप जितना वॉक करोगे उतना लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉकिंग करना। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, इवन सी सेक्शन, आजकल तो हर किसी के लिए सी सेक्शन हो गया हुआ है, बट हाँ, आप वॉकिंग जितना करोगे उतना आपका बेबीज़ का नीचे आ जाएगा और आपकी डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्विमिंग। स्विमिंग हर किसी के लिए नहीं होता, इट इज़ नॉट फॉर ईच एंड एवरी वन। हाँ, कुछ पेरेंट्स, कुछ लेडीज़ होती हैं जिनकी बॉडी इतनी फिट होती है, उनको यूज टू होता है, तो दे कैन डू द स्विमिंग, बट इट इज़ रिकमेंडेड इन ओनली इन द लास्ट ट्रिमेस्टर, नॉट बिफोर दैट। ओके, देन इज नर्चर योर माइंड। नर्चर योर माइंड बोले तो अपने माइंड को पीस दे दो, अपने माइंड को रिलैक्स दे दो, कुछ अलग चीज़ें सीखो, कुछ नया सोचो। जो कि कहते हैं ना, जो माँ सोचती है, जो माँ करती है, वही बच्चे पेट में सीख जाते हैं। जो माँ सुनती है, माँ के जो जिस तरह से जो चीज़ें सुनी जाती है या करती है, वही चीज़ें बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। एंड दैट इज़ ट्रू एज वेल, बिकॉज बीइंग अ मदर आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग एंड आई नो दैट। ओके, तो प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशंस आप जितना करोगे आपके खुद के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही आप रिलैक्स फील करोगे, माइंडफुलनेस फ्री करोगे, उतना ही अंदर बच्चा भी उतना ही फील करेगा, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स लिसन्स म्यूज़िक एंड प्रेगनेंसी पॉडकास्ट। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला म्यूज़िक आप सुन सकते हो। उसके अलावा आप प्रेगनेंसी पॉडकास्ट देख सकते हो, प्रेगनेंसी वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं हैं जितने बाकी सेगमेंट्स में हैं, हाँ, बट है थोड़े बहुत, जहाँ से आप एडवाइजेस ले सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ों पे सवाल पूछना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है आपके प्रेगनेंसी में बहुत सारे सवाल आते हैं, हर कोई इमेजिन नहीं कर सकता, हर किसी के हर एक सवाल अलग अलग हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो, तो आपके कमेंट पे जवाब मिल जाएंगे। इधर उसके ऊपर वीडियो आ जाएंगे, या फिर 1-to-1 आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा आपके कमेंट के ऊपर। शायद आपके एक के कमेंट आपके और 4 लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। रीड प्रेगनेंसी बुक। अगर जिस किसी के पास टाइम है, आप रेस्ट कर रहे हो, नींद तो नहीं आ रही, कंटिन्यू दिन भर सो के रहना पॉसिबल नहीं होता, तो दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ प्रेगनेंसी बुक्स रीड कर सकते हो, जिसके चलते आपको मतलब नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको बच्चों को भी एक ये मिल जाएगा कि वो एक संस्कार हो जाता है पढ़ने का। अपन जो पढ़ते हैं उसी का इम्पैक्ट बच्चों पे हो जाता है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी फैशन। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, अरे यार ढीले कपड़े पहनो, ये पहनो, मतलब खुद को इतना बोरिंग बना के रख देते हो, यार प्रेगनेंसी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उसको वैसा ना करते हुए हम ऐसा सोचें कि प्रेगनेंसी की फैशन हम कैसे करें, मैटरनिटी फैशन हम कैसे करें। तो कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स ले लो जो अच्छे लगे भी और ट्रेंडिंग भी रहे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगे, फील होगा कि अरे हाँ मैं कुछ नया कपड़े पहन रही हूँ। ऐसा नहीं कि गाउन डाल के घूमो दिन भर, तो इट डजंट लुक दैट, इट डजंट गिव यू दैट इम्पैक्ट एवरी डे। कभी कभार ठीक है, गाउन में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बट कभी कभार नहीं। तो कुछ प्रेगनेंसी क्लॉथ्स स्पेसिफिकली आ जाते हैं, तो वो कॉस्ट्यूम्स ले लो, वो पहनो तो खुद को अच्छा फील करोगे। नेक्स्ट, फोटोशूट।
फ़ोटोशूट आजकल की बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। मैटरनिटी फ़ोटोशूट बहुत यादगार भी हो जाती है और वो मोमेंट पूरे कैप्चर हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी मेमोरीज हो जाती है। तो कॉस्ट्यूम्स ले लो और उसके हिसाब से आप फ़ोटोशूट भी करो। नेक्स्ट, एक्सेसराइज। तो आप जो कॉस्ट्यूम ले रहे हो उसी कॉस्ट्यूम के हिसाब से इयररिंग्स ले लो या कुछ हेयर बोज, बैंगल्स, वॉट एवर थिंग्स यू वेयर, तो स्क्रंचीज एंड ऑल दो स्टफ ऐसे उस हिसाब से ले लो ताकि आप खुद को ब्यूटीफाई करके बहुत अच्छा फील करोगे। तो वो मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड आपको बहुत यादगार भी रहेगा। और उसके साथ फ़ोटोशूट्स कर लो तो कि वो सारे मोमेंट्स आपके कैप्चर्ड रहेंगे। नेक्स्ट, बॉन्ड विथ योर बेबी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि 18 वीक्स के बाद बेबी को आप जो बोल रहे हो वो समझ में आता है। आप उनसे साथ बात कर सकते हो। इट गिव्स यू रिस्पॉन्सेस एज अ माँ, मदर, और एक माँ बनने के नाते आप फील कर सकते हो कि अरे मेरा बेबी मुझे सुन रहा है, या फिर उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। आप वो चीज़ फील कर सकते हो। अगर आज के दिन में आप कोई 18 वीक्स क्रॉस्ड हुए प्रेग्नेंट वुमन है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सही में ये ट्राई करके देखो। आप कुछ बात करो तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे हल्के हल्के, आपको समझ आ जाएगा। तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। टॉक और सिंग विथ हिम, उसको कुछ लोरियाँ जैसे सुनाओ या फिर बात करो, बेबी आप कैसे हो, क्या हो, मतलब जो भी आपके मन में लगे उस हिसाब से आप बात करो, अपने मन की बात उसके साथ शेयर करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्ले सॉफ्ट म्यूज़िक, ऐसा सॉफ्ट वाला म्यूज़िक आप प्ले करो, तब भी बच्चों का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बेबी अंदर आपको रिस्पॉन्स करेगा। अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट होते हैं तो उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी आप वो जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसके जो स्टेप्स आते हैं, स्नैप्स को जनरल करके उसका एक मेमोरी बना के रखो, पूरा सारे टेस्ट। और वो जो पर्टिकुलर मोमेंट होता है जब वो डॉक्टर आपको दिखाते हैं और वो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, उस टाइम आप पेट के अंदर के बेबी को महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो चीज़ फील कर सकते हो। वो फीलिंग बहुत 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 खास होती है, वो हर बार नहीं मिलती है, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल मोमेंट। तो उस मोमेंट को एन्जॉय करो। नेक्स्ट कम्स इज कनेक्ट विथ योर लव्ड वंस। जो भी आपकी फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी शेयर करो। अगर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में अगर कोई प्रेग्नेंट है या आपके सोसाइटी में 3-4 लोग जो भी प्रेग्नेंट है तो उनके साथ एक ग्रुप बनाओ, या फिर अपने नेबरिंग में या अपने रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी जर्नी शेयर करो कि फर्स्ट डे कैसे फील हुआ था, या फिर एवरी डे बाय डे आपके इंटरनल क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको, या आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं, क्या तकलीफ़ हो रही है तो भी शेयर करो, अच्छा लग रहा है वो भी शेयर करो, तो बहुत अच्छा फील हो जाएगा। तो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने के साथ, जैसे मैंने ये मॉम्स कॉर्नर बनाया, ये स्पेसिफिकली मैंने मॉम्स के लिए ही बनाया ताकि एक मॉम दूसरे मॉम की फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकती है या एक मॉम दूसरे मॉम को कुछ सॉल्यूशन दे सकती है, इसीलिए मॉम्स कॉर्नर बना हुआ है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो डेफिनेटली आप मॉम्स कॉर्नर पे अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, कमेंट में आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आई विल बी दैट टू डिस्कस विथ यू। ओके, नेक्स्ट इज प्लान योर बेबी शावर। वो हर एक लेडी के लाइफ में बहुत अच्छा मोमेंट होता है बेबी शावर। और बेबी शावर के लिए आप जिस तरह से, जिस वे से आप प्लान करना चाहते हो वो कर सकते हो, दैट कम्स ओनली वंस इन अ लाइफ। तो बेबी शावर अपना प्लान करो, उसको स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करो। नेक्स्ट, जॉइन प्रेगनेंसी ग्रुप्स। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, अगर आप आजकल के हर कोई फेसबुक इंस्टा यूज़ कर रहा है तो कुछ ग्रुप्स होते हैं। हाँ, बट उसमें से एक एडवाइस ये रहेगा मेरा कि उन ग्रुप्स पे पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, बट नेगेटिविटी को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, ओनली टेक द पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि डरना इस स्टेज में, इस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बिल्कुल खुद के लिए डर नहीं रखना चाहिए, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएट अ कोजी नेस्ट। अपना एक घर में एक छोटा सा स्पेस बना दो अपने बेबी के लिए, जिसको आप और आपके पार्टनर मिलके सजा दो। एक रूम का कोई कॉर्नर या उसका जो भी एरिया, बेड के साइड में या कहीं पे भी आप जो बेबी के लिए एरिया बनाना चाहते हो उसको आप बहुत अच्छे से सजाओ, आप और अपने पार्टनर मिलके या आपकी फैमिली के साथ मिलके। उसमें बहुत बड़ा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है एक दूसरे के साथ भी और बेबी के साथ भी।
नेक्स्ट, डी क्लटर योर स्पेस। आपका जो भी स्पेस है वहाँ पे पूरा क्लटर पड़ा हुआ है, तो घर में क्लटर देख के ही क्या बोलते हैं, अपने सराउंडिंग में क्लटर रहेगा तो दिमाग में भी क्लटर ही रहेगा। तो सराउंडिंग का क्लटर क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा। सो डी क्लटर योर स्पेस। आपके स्पेस में जो भी क्लटरिंग है उसको निकाल दो और बहुत फ्री स्पेस एनवायरनमेंट रेडी करो ताकि खुद बहुत पीसफुल फील करें। नेक्स्ट, क्रिएट अ रिलैक्सेशन कॉर्नर। अपने खुद के लिए एक रिलैक्सेशन कॉर्नर बना दो जहाँ पे एक थोड़ी सी धूप आ रही हो, हवा आ रही हो, एकदम पीसफुल आप बैठ सको, सॉफ्ट कुशंस वगैरह डाल के, या फिर झूला है तो वहाँ पे, तो वो स्पेस आप अपने लिए प्लान करो। तो दैट इज़ अ वंडरफुल टाइम जहाँ पे आप अपने आप को रिलैक्स भी फील करोगे और वो एक अपना स्पेस भी बन जाएगा। एजुकेट योर सेल्फ अबाउट चाइल्ड बर्थ। दूसरा होता है कि अपने आप को चाइल्ड बर्थ के बारे में एजुकेट करो, अपनी डिलीवरी के बारे में एजुकेट करो। आप दोनों ऑप्शंस रखो कि नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है, सी सेक्शन डिलीवरी कैसी होती है। अब मुझे पूछो तो मेरी डिलीवरी, मैंने दोनों चीज़ें स्टडी करी थी, सी सेक्शन भी पता था मुझे और नॉर्मल डिलीवरी भी पता थी। और मेरी डिलीवरी तो 9 मंथ 15 डेज कंप्लीट होने के बाद आई हैव गॉट डिलीवरी, दैट टू आई डिडंट गेट पेन एट ऑल। मुझे पेन दिया गया और पेन देने के 26 आवर्स के बाद मेरी डिलीवरी हुई एंड डॉक्टर हैड गिवन मी अ चांस ऑफ लाइक 40-60 ऐसा करके फॉर सीजरीन, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी इट इज़ 20% पॉजिटिव एंड 80% नेगेटिव। स्टिल आई टुक अ चांस, नो मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, आप मुझे पेन दे दो, आई हैव कॉन्फिडेंस मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। दैट मच एडुकेटेड आई हैव माई सेल्फ, जिसके वजह से मुझे मेरे ऊपर बहुत फेथ था, बहुत कॉन्फिडेंस भी था। ओके, एंड मेरी मेडिकल कंडीशन मुझे पता थी कि मैं हेल्थ मेरा कैसा है, हाउ मच फिट आई एम एंड हाउ मच स्ट्रॉन्ग आई एम। तो ये चीज़ें मैटर कर जाती हैं, तो वो आप कर लो। तो आप जितना अपने आप को अंडरस्टैंड करवा के रखोगे तो आप उतना मेंटली प्रिपेयर रहोगे। ओके, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सेट बाउंड्रीज, रेड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि आप हर किसी से बात करोगे, हर कोई एडवाइस देगा, कोई अपने स्टोरीज बताएगा, कोई अच्छी बताएगा, कोई बुरी भी बताएगा, कोई ऐसी नेगेटिविटी बताएगा कि अरे डिलीवरी के टाइम ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अनस्कैरी जैसे काइंड ऑफ बहुत सारी स्कैरी स्टोरीज बताएंगे या चीज़ें बता दिए जाएंगी जहाँ पे आपको डर लग जाएगा, अरे यार ऐसा होता है। तो आप पहले से डर जाओगे, तो जब आप हॉस्पिटल में बेड पे रहोगे उस टाइम पे आपका बीपी अप डाउन होना फिक्स है। तो इसीलिए बता रही हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट रहो, बी स्ट्रॉन्ग। तो जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आपकी पूरी मेडिकल कंडीशन जो है बॉडी की डिलीवरी के टाइम पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और उस टाइम पे डॉक्टर्स को भी कोई प्रॉब्लमिटी नहीं रहेगी और आपके फैमिली पार्टनर को भी कोई इशू नहीं रहेगा और आप खुद के खुद इतना स्टेबल रह जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कैप्चर योर मूवमेंट। आपके जो भी मूवमेंट है सारे मूवमेंट्स कैप्चर करो। एवरी वीकली आपका बीबी बम्प का साइज़, उसके फ़ोटोज़, देन फर्स्ट केक, फर्स्ट फील, ईच एंड एवरी थिंग यू कैप्चर। सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस, जैसे ही फर्स्ट बेबी का किक आता है तो उसको सेलिब्रेट करो। फर्स्ट और कुछ ऐसा लगा हॉस्पिटल बैग पैक करने के टाइम पे, दैट यू सेलिब्रेट। तो ईच एंड हॉस्पिटल बैग पैक करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, बट उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। हॉस्पिटल बैग पैक करना, अभी कोई अभी से कंसीव करा हुआ है या अभी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में है, तो बाय दैट टाइम माई वीडियो विल कम। और अगर किसी को अभी ज़रूरत है कि उसमें एडवाइस दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करो तो मैं मेरा एडवाइस दे दूँगी। ओके, दीज आर द मेन 10 थिंग्स जहाँ पे आप अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉयबल इस तरह से बना सकते हो। ओके, प्रेगनेंसी इज़ लाइक बहुत मतलब स्पेशल थिंग होती है, तो उसको बहुत स्पेशल बना के ही सेलिब्रेट करो। प्रेगनेंसी का मतलब इतना ही नहीं होता कि आप जस्ट बेबी को ग्रो कर रहे हो। ओके, आप एक पेशेंस, एक रेजिलियंस, एक बहुत सारी चीज़ों के साथ आप वो हर एक मोमेंट में जी रहे होते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर अ हैप्पी एंड रिलैक्स मदर कैन गिव बर्थ टू अ हैप्पी बेबी। ओके, जो मदर हैप्पी रहेगी वही हैप्पी बेबी को जन्म दे पाएगी। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपका हैप्पी रहना, प्रेगनेंसी के पीरियड को एंजॉय एंड मेमोरेबल करना बहुत ज़रूरी है।
Thank you and be happy, all the mothers. You all mothers are very special. Love you, moms. Bye bye.